In this module, we will explain unintegrated sales processes and the problem faced by FitterSnack case. You have probably gone through the case in the reading material. तो अब हम रिव्यू करते हैं कि what are the problem this company was facing. सबसे पहले, as the case itself mentioned, कि they have separate information systems throughout the company, and at the same time they have three functional areas. First is sales order system, second is warehouse system, and third is accounting system. They are not using the same information system in all these functional areas, which means the task which they are performing in each of these functions and the system which they are using are different. Now, using the different information system does not mean कि company effective or efficient नहीं है, but having three information system storing the same and related information is an issue, and that is one of the problem they are facing. उसके साथ साथ many of sales orders have problems such as incorrect pricing. अगर आपको याद हो कि they have two divisions. First is warehouse, second is direct sales division. So in both of the divisions, if the information is different and if the information is not same in each division, तो pricing different होगी. The information which they have to quote for wholesale and the pricing and the information which they have to quote for direct sales would be different. इसी वजह से they were unable to track what is the actual pricing which we have quoted to one customer or to another customer. Second is excessive calls to the customer for information. So both of the divisions manage the information differently. They are using three different information systems. So अगर एक कॉल एक कस्टमर को चली गई है एक डिवीजन के अंदर, so there is no tracking mechanism कि एम्प्लॉय जो कॉल दोबारा कर रहा है उसको पता लग सके कि उस कस्टमर को ऑलरेडी कॉल जा चुकी है. उसका इफेक्ट ये हुआ कि कस्टमर माइट बी फ्रस्ट्रेटेड कि हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन या हमें ऑलरेडी कॉल आ चुकी है, एंड व्हाई यू आर कॉलिंग अस अगेन एंड अगेन. Delays in processing order. The reason for this is because they are using three separate systems which have no communication between each other. So there might be a possibility that the information which is generated in one is not communicated to the other system, and because of that, the higher and level of delays in processing times. उसके साथ साथ missed delivery dates. जब आपको पता ही नहीं है कि कितने कस्टमर्स हैं या किस कस्टमर्स को हमने कौन सा आइटम भेजना है और कब भेजना है, तो डेफिनेटली देयर विल बी मिस डिलीवरी डेट्स एंड हाई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर हैंडल्ड मैनुअली. इन द केस इट इज मेंशन्ड दैट देयर आर मेनी टास्क व्हिच द सेल्स पर्सन वर डूइंग मैनुअली. अब मैनुअल का देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो आपने टास्क मैनुअल किया है, पेन एंड पेपर यूज करके किया है, उसका रिकॉर्ड उस एम्प्लॉय से या उस सेल एग्जीक्यूटिव से गुम हो जाए. विच मीन जब वो गुम हो गया तो उसका कोई ट्रैक बैक नहीं है. सो देयर इज ए हाई चांसेस ऑफ एंड हाई रिस्क ऑफ लूजिंग द डेटा. व्हेन द डेटा इज लॉस्ट, इट मीन्स द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट हैव the same information which is required. And information stored in three systems is not available in real time. ये बात हमने पहले भी explain की है कि because of three information system, now having three information system is not a big deal, but not having an information which is integrated in all these three systems is a big problem, and that is one of the biggest problem they are facing, which is कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, द फंक्शन विच दे आर परफॉर्मिंग एंड द बिजनेस प्रोसेसेस विच दे आर एग्जीक्यूटिंग
वो शेयर्ड नहीं है और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी इंटीग्रेटेड नहीं है. So this is a high level of the business processes which they are executing. होता यह है कि सेल पर्सन विल कॉल द कस्टमर और कस्टमर उससे कहता है कि हाँ मैंने कोई आइटम खरीदना है, तो सेल पर्सन मैनुअली उसको कोटेशन देता है, उसकी 2 कॉपीज रखता है, एक अपने पास और एक वापस ऑफिस भेज देता है थ्रू फैक्स कि हमें सेल ऑर्डर जनरेट करना है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सेल्स ऑर्डर जब जनरेट हुआ, नाउ याद रहे कि ये सारा प्रोसेस एक सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैनेज हो रहा है. वो इंफॉर्मेशन वेयर हाउस चली गई ताकि आप उस प्रोडक्ट जो कस्टमर ने कहा है उसको पिक करें, पैक करें और शिप करें. ये सारी इंफॉर्मेशन वेयर हाउस प्रोसेसेस जो वहां पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वहां पे मैनेज हो रही है. देन इनवॉइस इज जनरेटेड ताकि कस्टमर उसे पे कर सके. वो सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी अकाउंटिंग को, एंड देन कस्टमर विल बी रिसीविंग द एक्चुअल आइटम. अब इसमें अगर थोड़ा गौर करें आप कि सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर जो सेल्स में जो डेटा जनरेट हो रहा है वो अकाउंटिंग वालों को नहीं पता या उसके साथ शेयर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी. इस केस के अंदर एक जो चीज जाहिर हो रही है वो ये है कि इंफॉर्मेशन साइलोज जनरेट हो रहे हैं. आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेल इज जनरेटेड, आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेयर हाउस इज ऑल्सो जनरेटेड, आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग इज ऑल्सो जनरेटेड. यहां पे सारी आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है लेकिन इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड नहीं है, और उसकी वजह से इस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं इस कंपनी को.